हेलो। Hello, Mr. Bhalla. हाँ जी। Um, um, I wanted some consultation in the health matter. यस प्लीज। My name is. I'm 22 years old. हम्म। Right now, I have some spotting problems going on for the long time. Spotting, सिंस व्हेन? it started from in January. This year in January it started. In व्हाट वाज योर December. साइकिल पीरियड अर्लियर? It was like irregular that time also, like after 28th or 30th, like it was like that only. व्हाट इज योर वेट एंड हाइट? Weight is somewhat between 42 to 43 it may be, and I am 5 feet 1 inch. And like diet, when I was at my home, I used to eat I used to have milk, fruits, little vegetables, and the normal meal which everyone is having. That kind of thing. And I eat like sweets, like mithai and all. So I had this thing when I was at my home, but when I am here, like in hostel, I am at Delhi. So I am getting that tiffin system lunches I am getting. It's sandwiches, idli. How much water do you drink in a day? I drink a lot of water, How much approximately? 4 to 5 liters. 4 to 5 liters. I And don't know. Like I have one bottle of that Milton water bottle is there. I fill it like 2 to 3 times a day. what is your exercise routine? How much you work out? I don't exercise normally, but these days I am having my classes, so I need to go out, and it's on like total in a day from 1 week I am walking like for 45, like for 1 hour I am walking, I don't get e-rickshaw now from my hostel to that metro station, so I have to walk. So it's coming and going, and that coaching things, stairs and all. I walk like 1 hour daily, so my body is totally When exhausted. when do you get your tiffin lunch or tiffin meals? I get it early in the morning, like at 7:30, 7:45. And On the next? normal days. In normal days, it's like 7:30 to 7:45. But at the time of my classes, I get it at 7 o'clock in the morning. And after that, I have my classes from 8 a.m. to 12:45. So in that, we don't have anything in that I used to get that coconut water or that Amul lassi and all these kind of stuff when I have break, and after that I come to my room and I have my lunch. What time? At what time? When I am at home, when I have no classes, I eat it at most probably 1 or 1:30. It's in between 12:30 to 1:30. I have my lunch. But when I have my classes, I am outside my house, my room. So it lunch arrives, but I take it at 3:30 because that time get lapsed now, for traveling and all. So at 3:30 I have my lunch. Then I sleep like for 1.5 hours. Then I have some, if I want, if I have the mood of eating fruits and all, then I have it. Then I have that meal in the meal at the sleeping time. Are you comfortable in Hindi? Yeah. So you can talk in Hindi also anyway. And अच्छा एक चीज बताइए, आपका मील साइज कितना है? आप एक बारी में कितना खाते हैं? एक टाइम में जितना चावल ये लोग देते हैं, काइंड ऑफ टिफिन सिस्टम, तो चावल रहती है और रोटी, 6 रोटीज दे गिव, 6 रोटी वो लोग देते हैं. तो
5 जितना भूख जितनी भूख रहती है उसके हिसाब से खाते हैं। मतलब खा लेते हैं, जितना टिफिन आता है उसके आसपास करीब करीब पूरा खा लेते हाँ हैं आप, छोड़ते हाँ नहीं ज्यादा। हाँ, ज्यादा नहीं छोड़ते हैं। ये जो स्पॉटिंग हो रही है कब से हो रही है, जब से यहाँ पर आए हैं? नो सर, लाइक फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। अच्छा, जनवरी से हो रहा है। और प्रॉपर ब्लीडिंग जो होता है, प्रॉपर फ्लो नहीं आ रहा? इट्स लाइक डेट से जो प्रिस्क्राइब डेट होती है उसके 15 डेज पहले ये स्टार्ट हो जाता है और अच्छी तरीके से भी नहीं आता है, धीरे धीरे। नॉट इवन इफ अगर एक साथ उसको किया जाए कलेक्ट तो नॉट इवन 1 स्पून इट गेट्स, तो इतना भी नहीं आता है। और फिर धीरे धीरे लाइक आज हुआ तो कल नहीं हुआ, फिर परसों हो रहा है, धीरे धीरे एट एनी टाइम आते रहता है। और फिर जब डेट आती है ना तो उस टाइम पे ये हो जाता है, बट वो भी इरेगुलर काइंड ऑफ थिंग होता है, लाइक कभी नॉर्मल फ्लो कभी इरेगुलर, इस टाइप से होता है। आप वो कितने बजे सब उठते हैं? आई वेक अप एट 6, लाइक 5 से 6, 6:30 के बीच में। और सोते कितने बजे हैं? 12, नाइट? तो यू गेट ओनली 4-5 hours sleep? 12:30, like I study now at night. I don't get time in the morning to study, so I study at What night. is your subject? Like I'm preparing for UPSC. IAS officers. Yeah, What is your background earlier? Like science or what? yeah. It was science, physics honors. Physics honors. Yeah. देखिए इसमें आपका जो फ्लूइड इनटेक है, चाय वगैरह भी पीते हैं, चाय मिल्क और एनीथिंग? दूध पीते, लाइक पटना में जब आई वॉज देयर आई यूज टू हैव दैट काउ मिल्क। हियर आई डोंट गेट काउ मिल्क, आई गेट पैकेट मिल्क। तो उसमें बफेलो का मिल्क रहता है शायद, सो आई गेस वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है मेरे को। और वी डोंट हैव फ्रिज फैसिलिटी, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, सो वो एक बार में रहता है। तो आई टेक इट ½ kg, तो आई बॉयल इट and then let it down to cool and then I drink whole in one time only. देखो आपका फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा है, Food ठीक है? intake. फ्लूइड, पानी और लिक्विड जो है ना आपके, बहुत ज्यादा ले रहे हो आप। अच्छा, तो आपको जो एक चीज करना है, आई डोंट नो वेदर यू गेट एनफ टाइम और नॉट। आपके हॉस्टल में जहाँ पर आप रहते हैं रूम में, हाँ वहाँ पर वॉक करने के लिए जगह है क्या? हाँ है। आपने मेरा क्या नंबर कहाँ से मिला, यूट्यूब से? वो एक फ्रेंड है मेरे, वो उनसे अच्छा, शिव तो दीदी। हाँ, हिज डैड इज लाइक, उसके पापा आपसे बात करते हैं, तो उसने ही कहा कि आपसे बात करने के लिए। ओके। देखिए इसमें आपका फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा है। आप क्या करें कि कुछ दिनों के लिए सिर्फ खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए। हाँ सो पूरे दिन में 3 बार खाना खाइए। कोशिश करिए कि खाने के बीच में गैप होना चाहिए 6 घंटे का। हाँ तो अगर आप 7 बजे खाते हैं तो उसके बाद 1 बजे खाइए, उसके बाद आप 7 बजे खाइए रात को। और बीच में कुछ मत खाइए, फ्रूट वगैरह कुछ मत लीजिए। फ्रूट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, आपको सिर्फ 3 मील्स लेना है, सुबह, दोपहर को और रात को। और हाँ हर एक मील में 6 घंटे का गैप रखिए। खाना हाँ जो खा रहे हैं वो खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स और स्वीट्स और दूध वगैरह, मिल्क वगैरह सब बंद कर दीजिए। चाय वगैरह तो आप लेते नहीं ना? सर। तो आप सिंपल सा काम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार खाना है और पानी भी खाना खाते खाते पीना है, ठीक है? अब आपका जितना फ्लूइड इनटेक है, अब आपको प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, तो आप उसके लिए वॉक एंड रेस्ट, उसके लिए नहीं अदरवाइज भी ना, अगर आपको पीरियड रेगुलेट करना है तो वॉक एंड रेस्ट करिए। 5 मिनट चले और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट लेट के आराम करें। तो इस तरीके से कोशिश करिए हर घंटे में 5 मिनट चलने का। तो अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो उस पीरियड में आप देखिए इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जब आप क्लासेस में नहीं कर सकते हैं इसको, तो उस समय 5 मिनट का जो 1 घंटे में करना है ना, उसको आप आधे घंटे में कर लीजिए रेस्ट ऑफ द टाइम।
लेट अस से यू कम बैक एट 3 o'clock, टेक रेस्ट, आप 1 घंटा सो जाते हैं या 2 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद में जब आप फ्री हैं तो उसमें पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए वॉक करें नॉर्मल स्पीड पर, ठीक है, और 5 मिनट वॉक करने के बाद 5 मिनट लेट जाएं। बस ये 2 चीजें करिए। प्रॉपर बेड पे जैसे सोते हैं वैसे? हाँ, अच्छा। और ये आप 2-3 दिन करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे दो 2 दिन बाद, और मैं आपको फिर आगे का रूटीन बता देता हूँ कितना पानी पीना है, कैसे करना है। और आपको जब भी मुंह सूखेगा आप 2-3 बार ही लगातार 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, ऐसे करने से आपको जो मुंह सूखने का और प्यास लगने का सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको प्यास जो तंग करेगी ना वो 2 दिन के लिए भी नहीं, 1 दिन के लिए या 12 घंटे के लिए तंग करेगी, उसके बाद मुंह में सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका बल्कि जो वेट है वो भी थोड़ा सा शायद लोअर साइड में है, तो अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे तो शुरू शुरू में तो 1-2 किलो वेट लूज होगा, पर उसके बाद अपने आप से गेन होने लग जाएगा एंड यू विल फील मोर एनर्जी ऑल्सो। आपको पेन तो नहीं होती ना पीरियड्स में? ये से बहुत पेन होती है, और ना लाइक अगर पेन स्टार्ट होती है ना तो चक्कर वाली फीलिंग भी आती है और वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी आती है, और बॉडी लाइक एक लाइक कुछ एनर्जी ही नहीं बचता, ऐसा फील होता है, लाइक laying on the bed for a whole time and doing nothing, things like that। तो एकदम एनर्जी नहीं होती है बॉडी में, बोलने का भी मन नहीं करता है, खाने का भी मन नहीं करता है। पेन कितनी होती है? आप पेन किलर लेते हो क्या? नो सर, जब स्टार्टिंग में जब व्हेन आई वाज 12 और 13 इयर्स ओल्ड, लाइक जब स्टार्ट हुआ था हाँ, तो पेन किलर आई यूज्ड टू टेक, बट आई लेफ्ट इट। बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गया है, पेन किलर्स नहीं लेते हैं। पर पेन बहुत होता है। हाँ। हम्म, आप सेक्सुअली एक्टिव है क्या? नो सर। कोई भी किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, मास्टरबेशन वगैरह? नो सर। ओके। आप इसको करिए, 2-3 दिन करिए, और फिर उसके बाद 2-3 दिन या 1 दिन भी करिए। आज क्या आपको जाना है क्लासेस के लिए? नो सर, 18 तक ऑफ है। 18 आज क्या है? ओके, 3-4 दिन का छुट्टी है ना आपका। तो हम्म। आज ये जब छुट्टी आपका है तो आप इसमें प्रॉपरली वॉक एंड रेस्ट कर सकते हैं ना 1 घंटे में। हाँ तो आप अभी शुरू कर दीजिए। ब्रेकफास्ट तो आप कर चुके हो कि नहीं? सर, ब्रेकफास्ट में पराठा मिला था तो वो मैंने नहीं खाया, मैंने ब्रेड और जो वो पीनट बटर होता है वो खाया। क्या खाया? ब्रेड एंड पीनट बटर। हाँ, कोई बात नहीं। आपने पेट भर के खा लिया क्या? पेट भर के नहीं खाया, जस्ट 4 ब्रेड खाया। तो अभी आपको लंच तक आप कुछ खाएंगे या रह सकते हैं लंच कुछ खाए बिना? हाँ, रह सकते हैं। हाँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि पूरे दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना है, अच्छा। और फ्रूट और दूध और मिल्क वगैरह जो भी है उसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी मत पीजिए। सर, तो जरा सा भी फ्रूट्स नहीं खाना है तो सर लाइक होता है ना कि खाने से एनर्जी मिलती है बॉडी नहीं, को। नहीं, एनर्जी नहीं मिलती है। आप फिलहाल तो 2-3 दिन के लिए स्ट्रिक्टली जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, तो आपको 2-3 दिन में ही आराम मिल जाएगा और आपका पेन भी 1-2 महीने तक बंद हो जाएगा। आप इसको प्रॉपरली करो एक बार। आप अभी आज करो, शाम को मुझे फीडबैक दे दो। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ, शाम को क्या कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि आपको लगे कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग, तो एक बार बात कर लो। अच्छा, और सर लाइक स्पॉटिंग जब पहले होती थी ना तो इट वाज लाइक आज का लाइक आज स्टार्ट हुआ तो किसी टाइम पे थोड़ा सा आया, फिर रुक गया, फिर होल डे नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट डे किसी भी टाइम पे थोड़ा सा आया और फिर नहीं होगा। लेकिन इस बार जो हो रहा है लाइक और ना सर, उस टाइम पे आई कंसल्टेड अ डॉक्टर, शी गेव मी ओसीपी, दैट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। शी क्या ओरल टोल्ड क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ओसीपी होता है ना, टैबलेट टाइप ऑफ अच्छा, थिंग। अच्छा। हाँ, I don't remember the name, but she gave me, and she told me to take it for 2 months, and she told देखो, me, देखो, देखो, मैं आपको, आप मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ हाँ, मेरी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती है और मैं उसको यूट्यूब चैनल पर एज इट इज डाल देता हूँ। अच्छा
अभी देयर वाज ए लेडी अबाउट 40 ईयर ओल्ड, उनका प्रॉब्लम क्या था कि उनको जब पीरियड आते थे स्पॉटिंग होती थी 5-6 दिन के लिए, हम्म, उसके बाद में हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, बंद नहीं होती थी, और ये 5 महीने से उनके साथ चल रहा था। अच्छा, उनको सिर्फ 2 दिन में आराम मिल गया। ओ, और उसके बाद में देयर वाज अनदर लेडी 45 ईयर ओल्ड, उनको 5 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे, तो उनको दूसरा प्रॉब्लम था कि 20 साल से उनको आर्थराइटिस था। अच्छा, तो उनको भी पीरियड्स आना शुरू हो गया, और उसके बाद ब्लीडिंग उनका जो पहले हो ही नहीं रहा था वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। तो उसको भी बंद करने के लिए सिर्फ 2 दिन लगता है, पानी का रूटीन को चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता, कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं होता। आप इतने सालों से परेशान हैं, आप इसको प्रॉपरली समझो। सिस्टम हमारा जो है ना वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है और वॉक एंड रेस्ट है। बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं यूर आउट ऑफ एनर्जी। हाँ, जब एजिंग होती है ना, जब बुढ़ापा आता है तो हम्म, एनर्जी कम हो जाती है, हम्म, और एनर्जी कम होता है तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो सेक्सुअल हेल्थ है, वो खराब हो जाती है। हम्म, आपको आइडिया होगा कि मेनोपॉज वगैरह भी होता है 45 टू 55 की एज में। हाँ, हाँ, जिसकी एनर्जी लेवल जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा लेट होता है। अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है तो इवन 70 और 80 ईयर्स में भी आपको कुछ नहीं होगा, हम्म, और अगर आपका एनर्जी 15-20 साल में भी कम है तो 15-20 साल में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है। इन दोनों का जो पर्पज है, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा कारण है आपका लो मेटाबॉलिक रेट है, एनर्जी नहीं है। हाँ सर, मेरा क्या बता रहा हूँ? हाँ, हाँ, हाथ पैर है। हेलो क्या क्या? सर, मुझे जो मेरा बॉडी है ना उसमें एक हमेशा लगता है कि थके हुए पैर हाथ, हमेशा उसमें दर्द रहता है, ऐसा फील होता है ना कि कि पैरालाइज है। आपका जो इतना फ्लूइड इनटेक है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, आपके अच्छा, सेल्स में पानी बहुत ज्यादा है, मे बी और वेरी थिन, बट उसके बावजूद भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्पेक्टेड है। आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो जो आपको रूटीन बताया है खाने हाँ, के साथ पानी पीने से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ते ही आपको ऑलमोस्ट 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर मुंह में सलाइवा आने लगेगा। आप 4 लीटर 5 लीटर पानी पीते हैं फिर भी आपका मुंह सूखता रहता होगा। हाँ, 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 अभी आपको जो रूटीन बताया, आपको टोटल 600-700 या 750 ml पानी पीना है, सिर्फ 3 गिलास पानी पीना है। उस अच्छा, 3 गिलास पानी पीने के बावजूद 12 घंटे के बाद में आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। तो और जो आपके शरीर में पानी भरा है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। और सर जब बाहर जाएंगे तो धूप रहती है ना, तो उसमें भी पानी नहीं पीना है, जैसे कि अगर अभी तो आप 3-4 दिन के लिए छुट्टी है ना आपका, हाँ, 3 दिन के लिए अभी आपका छुट्टी है ना, हाँ, तो अभी तो बाहर नहीं जाना आज। हाँ, हाँ, यस सर। और हाँ, सर एक चीज और कहना था, जैसे कि जब मार्च में मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने जो दवाई दी थी ना, उसके बाद बोला था कि मिलने के लिए, मैं मिली नहीं उनसे, और मैंने दवाई छोड़ दी, तो वो छोड़ने के बाद का जो नेक्स्ट पीरियड आया उसमें बहुत लाइट फ्लो, बहुत ज्यादा लाइट फ्लो, और सी क्या। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता। ये जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और हाँ, जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं जब मेडिसिन से डॉक्टर से कुछ नहीं होता तब कॉल करते हैं। हाँ, और इसका रिलीफ का जो टाइम होता है, जो 2-2 साल तक भी डॉक्टर के मतलब कंसल्ट करते रहते हैं, उनको आराम नहीं मिलता। आपको सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ कि सिर्फ आज शाम तक करो और बताओ। अच्छा, अगर और आप इसको प्रॉपरली करोगे जितना बताया है तो आपको शाम तक ही डिफरेंस दिखाई देने लगेगा, कल तक आपकी बॉडी में एनर्जी आने लगेगा। अच्छा, पर अच्छा, दोनों में से कुछ भी मिस मत करना। हाँ, हाँ, अच्छा, एक चीज और पूछना था, जैसे कि पहले घर पे मेरे को एसिडिटी वगैरह किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कि जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो लाइक खाना खाने के बाद रात को पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, और बहुत गर्दन में बर्निंग सेंसेशन टाइप का होता है बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद। देखो, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है कि आप बीच बीच में खाना खाते रहेंगे, फ्रूट खाते रहेंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम देना होता है, इसलिए मैंने बोला कि आप खाने के बीच में 5-6 घंटे का गैप दो। तो अगर आप खाना खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये सब बर्निंग वगैरह नहीं होगी। बर्निंग का मतलब है इन्फ्लेमेशन होती है, उसका कारण यही होता है कि आप जो खाना खाते हैं ना, हाँ, उसकी जो पेस्ट बनता है, उसका जो मिक्सचर बनता है ना, वो स्मूथ नहीं होता है। अनडाइजेशन का मतलब है आपने खाना खाया, वो अभी पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बना, उसका पूरी तरीके से उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो आपने कुछ और खा लिया, वो उसको धकेल देगा नीचे। अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटोग्राफ तो आपने देखा हुआ है ना,
कितना छोटा और पतला और वो मुलायम होता है। तो हाँ। अगर उसमें जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड जाएगा तो वो उसको छीलता जाएगा, बर्निंग होगा, उसको इन्फ्लेमेशन होगा उससे। तो वो सिंपल सिंपल सा चीज है, उसको आप एसिडिटी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एसिडिटी वाले पेशेंट पूरी लाइफ मेडिसिन लेते रहते हैं, और जबकि जो 10 साल से मेडिसिन ले रहा है वो एक दिन में मेडिसिन छोड़ के भी ठीक हो जाता है। आप अपना पानी को कंट्रोल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। और फिर वो आपने क्या बोला, वो सेक्सुअली एक्टिव एंड ऑल, उससे क्या रिलेशन है? किस चीज का? वो पीरियड क्रैम्प्स का और वो पेट दुखता है और उस टाइप का वो जो होता है, उसका उससे क्या रिलेशनशिप है? सी, उसमें रिलेशनशिप, देखिए, जो भी फ्लूइड होता है बॉडी में, जैसे मैं आपको मतलब उसका रेलेवेंस बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो बाल होते हैं हाँ। आपके, हेयर फॉल भी होता होगा। कैल्शियम से हेयर फॉल यहाँ पे आने के बाद होने लगा, घर पे नहीं होता था। आप तेल लगाते थे? हाँ, सैटरडे सैटरडे। जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो हमारे स्काल्प से ऑयल निकलता है, ये तो पता ही होगा हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ। जब आप ऊपर से तेल लगा लेते हैं तो जो स्काल्प से नेचुरल ऑयल निकलना था वो नहीं निकलता है। अच्छा। तो वो जो ऑयल होता है वो ड्राई अप होकर आपके स्काल्प के अंदर लेयर बना लेता है, और वो ही डेंड्रफ होता है। हाँ। तो आप अगर ऑयल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, डेंड्रफ जो झड़ता है वो नहीं झड़ता, वो चिपक जाता है। तो उससे आपको लगता है कि डेंड्रफ कम हो रहा है, जबकि ऑयल नहीं लगाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी ऑयल और कोई भी शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए बालों में। तो आपको मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो फ्लूइड, जो ऑयल आपका बालों में सर से निकलता है, वो ऑयल जब नहीं निकलेगा तो ड्राई अप होकर आपका स्काल्प में प्रॉब्लम करना शुरू करेगा, आपका इन्फ्लेमेशन होगा और आपको स्काल्प में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, इचिंग होगा, या इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी कहीं पर, और डेंड्रफ हो जाता है। ठीक है। दुनिया में डेंड्रफ ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की पॉपुलेशन डेंड्रफ और बालों की प्रॉब्लम से तंग है। जबकि डेंड्रफ सिर्फ 4 दिन में परमानेंटली खत्म हो जाता है अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो करो। तो उसमें क्या होता है कि आपके स्काल्प से जो ऑयल है उसको निकालना है। अगर वो ड्राइड अप जो ऑयल है वो निकल जाता है तो आपका डेंड्रफ और हेयरफॉल का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अभी आपके स्काल्प से ऑयल निकलना है, वो ऑयल नहीं निकलता तो प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से आपका सेक्सुअल चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है वो बाय द एज 11, 12, 13 में हो जाता है। हाँ। सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर लुब्रिकेशन भी होता है और फ्लूइड्स भी निकलते हैं। हाँ। अगर आपकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होता है तो जो सेक्सुअल फ्लूइड्स होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्फ्लेम होने लगते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर आपका मॉइस्चर वगैरह फ्लूइड होगा, और वो आपके जो अंडरवियर्स हैं उसमें लगने की वजह से रगड़ लगेगा वहां पर, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो फिलहाल आप इसको करो। आपको पहले तो कॉन्फिडेंस हो ना कि जो आपको मैं बता रहा हूँ उससे आपको आराम मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जो इस चीज के बारे में कुछ चेंजेस कर। अदरवाइज देखो, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है नॉर्मली ये कहा जाता है कि उससे हेल्थ खराब होती है, वीकनेस बढ़ती है। परंतु ऐसा नहीं। जो लोग जैसे यूजली जो लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं उनका सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि उनको यही पढ़ाया जाता है, उनको ये इंप्रेशन होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इज बैड फॉर हेल्थ। परंतु उसकी वजह से नेगेटिव होता है कि उनका स्किन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, और ओवर सेंसिटिव होने से जो ऑर्गेज्म होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, या रात में हो जाता है, सोते में हो जाता है। तो उस सेंसिटिविटी की वजह से और कॉम्प्लिकेशन होता है, और वो धीरे धीरे करके जैसे वाइट डिस्चार्ज है या दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाती है। वो इवन इंटेस्टाइन्स को, डाइजेशन को खराब कर देती है। आप जो बता रहे हैं कि आप एक बारी में 5 रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आप खाते तो बहुत हो पर आपका वेट नहीं गेन हो रहा ना। हाँ, वेट नहीं गेन हो रहा है। तो उसका वजह वो इंडाइजेशन होता है। तो वो जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो आपके मतलब इंटेस्टाइन्स तक भी पहुंच जाता है धीरे धीरे। से जो आपने जो भी बोला उसे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब जो भी समझ में नहीं अभी आया। आप बाहर हो क्या? बीच में से आवाजें आ रही हैं। नो सर, मेरा रूम बालकनी साइड में है तो वो हमेशा आवाज आती रहती है, तो ओके ओके। आप अभी इतना करो ना, फिर उसके बाद में बात कर लेना। जब फीडबैक दोगे ना, फिर कभी अभी मुझे फिर जाना है,
तो अभी आपको जो बताया बस वो रूटीन करो, बाकी चीजें बाद में बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो ठीक है। 6 घंटे के ब्रेक पे वॉक एंड रेस्ट करना है हर 1 घंटे के बीच में। ओके सर। हाँ हाँ, शुरू में अभी आप हो सके तो 1 घंटा कंटिन्यूअस कर लीजिए। उससे आपको जो डाइजेशन है थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा उससे। और आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक ऐसे करते रहो। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन में मतलब फूलना होता है तो। वो आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इन दोनों चीजों को फोकस करो और आप भी कोशिश करो, शाम तक आपको आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अभी आपके पीरियड्स अगर चल रहे हैं क्या? पीरियड्स नहीं चल रहा है, वो स्पॉटिंग वाले पीरियड्स का डेट तो सर मंथ के एंड में है, 28, 27 उस टाइम में, बट अभी से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ये करना शुरू करो। आपको देखते हैं आज शाम तक कितना आराम मिलता है। आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपको करो आप इसको। हाँ, और रेगुलरली कल से आ ही रहा है। इससे पहले होता था एक ड्रॉप आया आज तो दूसरा ड्रॉप कल आएगा, तीसरा ड्रॉप कल आएगा, ये ऐसे नहीं आपकी कि आवाज बाउंस हो। आप क्या हैंड्स फ्री यूज कर रहे हो क्या? हेलो। हाँ हाँ सर, वो कह रहे थे ना कि पहले क्या होता था, जैसे आज एक ड्रॉप आया तो कल एक ड्रॉप आएगा तो परसों एक ड्रॉप आएगा, लेकिन ये इस टाइम से, ये अभी जो स्टार्ट हुआ दवाई वगैरह लेने के बाद से, ये ऐसे हो रहा है कि शाम से स्टार्ट हो ही गया तो हल्का 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 आ ही रहा है। लाइक पहले पैड नहीं यूज करना पड़ता था, वो नॉर्मल हो जाता था, जब आता था तो पता चल जाता था कि अभी आ रहा है। बट कल शाम से ना तो रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहे, तो पैड लेना पड़ रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, पैड ले लो। और उसके बाद आप मेडिसिन वगैरह बंद करना चाहो तो मेडिसिन बंद कर दो। आपका इसी सिस्टम से रेगुलेट हो जाएगा वो सब। ओके सर। आपको जिसने भी बताया उसने मतलब ही मस्ट बी फॉलोइंग माय यूट्यूब वीडियोस, तो उसको मालूम है कि इससे ठीक हो जाता है बहुत जल्दी। आपको दुनिया में, आपको लाइफ में कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज के लिए नहीं पड़ेगा। आप इस हाँ चीज को समझोगे ना। हाँ आप, मेरा वेबसाइट भी है, आप उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा के ना सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। आप healthyindianow.in में देखो। सर, क्या? healthyindianow.in। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पे है। हाँ हाँ, यस सर। आप हाई करके भेजो, मैं भेजता हूँ अपना वेबसाइट और कुछ डिटेल भेजता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक